Recording, yes, recording started. So unit 2, and in unit 2 only one lesson is there, that is cyber safety, and very easy chapter to understand because you must have heard many cases related to cyber crime, है ना? Nowadays we are surrounded with a digital world. Rather, I should say we are in compact mode with digital world, social network. Okay. Gaurav, notes you can write in copy. ठीक है. Question answer available in the exercise. You must go through there. So there is no compulsion in writing question answer in copy. If you write, then it is another thing. That is good part. But there is no. Good morning, sir. Good morning, good morning. Welcome to the class of computer with the help of computer. ठीक है. I'm taking class of computer with the help of computer. That's pretty nice. Yes. So cyber safety. When we say cyber safety, cyber crime comes in the mind, है ना? Safety किससे? Cyber crime से. ठीक है. Cyber crime, it is very common nowadays. Previously, when we were not much connected in social networking, it was less cyber crime, or you can say cyber theft. ठीक है. So just in the previous chapter, we came to know about computer networking, LAN, MAN, PAN, WAN. ठीक है. And now we are going to know the drawback of computer networking, but with some precautional measurement, we can make ourselves safe from cybercrime. And what are the things which you need to take care? This lesson will tell you, है ना? So बहुत ही easy एक chapter है. I don't think you will find any problem. ठीक है. And yes, I'm preparing the PPT for the notes. Very soon it will be uploaded within 2 days. ठीक है. So let us highlight the point which we need to understand. Yes, so this picture is related to cybercrime. And what is cybercrime? When someone hacks your password of any bank ID, email ID, Facebook ID, Instagram ID. Okay, so password is essential for us to keep our accounts secure. But if the password is hacked, then our account is not secure, which is known to all. ये सब आपको पता है. ठीक है. ये कोई मतलब this is not a new thing nowadays. Hacking, cracking. अच्छा, one more thing is there. You must have heard about ethical hacking. इस चैप्टर में उसको भी समझेंगे. What is ethical hacking? ठीक है. The world of computer is really very nice if you go into deep. Okay. Hacking, cracking, ethical hacking. We will come to know all these terms. Okay. So what is cyber safety? There is an example of case study. You must have seen your parents visit the bank to operate the locker. What purpose does the locker serve? Your mother keeps her jewelry and valuable in the locker. Your father keeps important and confidential documents in the locker. So nowadays we are having digital locker. है ना? डिजिटल लॉकर में हम लोग अपने डिजिटल कंटेंट्स को रखते हैं. लेकिन अगर वो डिजिटल लॉकर का पासवर्ड किसी को मिल गया,
तो हमारे डिजिटल कंटेंट का तो काम तमाम। ठीक है। तो जब हमारे डिजिटल लॉकर में कोई घुसपैठ उसे हैक करके अंदर आ जाता है और आपके डेटा को चुरा लेते हैं, तो वो उसे कहते हैं साइबर थेफ्ट। सो लेट अस रीड व्हाट इज साइबर थेफ्ट। एंड साइबर थेफ्ट से बचने के लिए हम लोग ये चैप्टर को पढ़ रहे हैं, दैट इज साइबर सेफ्टी। सो हियर in the yellow box you can see cyber theft is stealing confidential, personal and financial information such as password, bank details, credit and details, etc. from a personal computer or device and misusing it to harm the user. So that is called cyber theft. Acha. Uh, in the world of hacking and cracking, you know what, few are there who only steal your data, but few are there who steals and also erased data from your system, which is more harmful for us. Data chori karna. Sir, Yes, who is that? Bhav, sir, every day I have that I read the news in Google that today was the news about in safety, Huh? cyber safety about 70 lakhs Indians server all about 1 minute it was hacked Okay. yesterday. Mm-hmm. That's very 70 lakh people in the 70 world lakh. Can you imagine? was hacked yesterday. And the number will increase definitely. Sir, in only in half an hour. Oh my God. Within half an hour. Yes, sir. See, my dear students, in which we are. Okay, we know that everything has advantage along with disadvantage. When wide area network, जिसे हम इंटरनेट कहते हैं, it has made easier our life, but this is the problem, big problem. Okay, so cyber theft, it is clear to all. I hope there is no confusion. When someone steals your confidential data from digital world, ठीक है। अच्छा, और एक बात, if your system is not connected to the internet, then no one can steal your data except if someone comes at night, कोई रात को आके आपके कंप्यूटर को ऑन करके चुरा के ले जाता है, वो तो अलग बात है। लेकिन साइबर चोरी वो कब पॉसिबल है, जब आपका कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है, दैट मीन्स इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट? हाँ, व्हाट इज ऑनलाइन आइडेंटिटी? अब सी, वेरी सिंपल थिंग, अगर किसी को चोरी करना है किसी के घर में, तो उसका एड्रेस तो पता होना चाहिए ना, ये है ना। किसी चोर को किसी घर का एड्रेस पता होना चाहिए, तभी वो जाके घर पे चोरी चोरी कर पाएगा। सो when you are connected, just, I am teaching you with the help of laptop internet. So my laptop is connected with internet, so my laptop has online identity. So वो online identity क्या होता है, एक बार देख लो। What is the first step to join any social media like Twitter, Facebook, WhatsApp, or Instagram? You first have to create a login, which requires to key in a lot of personal information such as your name, date of birth, address, etc. We know that, कोई डाउट नहीं है इसमें। The information creates your online identity or social identity on the internet. People actually look at your online identity when they see your profile on the social networking site. Remember, you have to be very careful as to what and with whom you are exchanging the information online. So nowadays, when you search websites to get information like Byju's or Edu Mantra, ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल वेबसाइट्स है। Nowadays they are asking your email ID and phone number, है ना।
पूछते कि नहीं पूछते? पूछते हैं सर। है ना, बहुत सारे वेबसाइट्स है जो हमें हमारा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर्स पूछते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऑनेस्टली आप अपना आईडी दे रहे हैं तो वो एक्चुअली, अगर वेबसाइट सेफ है तो देन देर इज नो प्रॉब्लम। ओके, कोई भी ऐसे बेनाम वेबसाइट को आप प्रोवाइड ना करें तो ज़्यादा सही है। अगर कोई स्टैंडर्ड वेबसाइट है जिसका रेपुटेशन अच्छा है, यू कैन देन शेयर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, so you need to be very careful while you are sharing your email id, your mobile number. ठीक है, when you create an account, it doesn't matter where you are creating the account. It can be Facebook, it can be Twitter, it can be Snapchat, it can be WhatsApp, it can be Twitter, और क्या है, LinkedIn. So you need to be, इंस्टाग्राम। हाँ इंस्टाग्राम को तो मैं भूल ही गया था, अरे बाप रे। नाउ आइडेंटिटी थेफ्ट, तो आपको आई थिंक कैप्शन से ही समझ में आ जा रहा है आइडेंटिटी थेफ्ट का क्या होगा। When someone else uses your online identity to create fraudulent messages or commit crimes, it is known as identity theft. वही है, सिंपल सा चीज है। आप कई बार सुने हो कि भाई मेरा पास फेसबुक का आईडी हैक हो गया। दैट मीन्स किसी ने मेरा फेसबुक का आईडी पासवर्ड चुरा लिया और वो मेरे आईडी में आके, मेरे फेसबुक लॉगिन आईडी में आके गलत गलत काम कर दिया। तो फंसे कौन? आप फंस गए। तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी थेफ्ट एंड इट इज इलीगल एंड क्या बोलना चाहिए उसे, इट इज ऑफेंस, अपराध है, ये कानूनी अपराध। ठीक है, तो फेसबुक तक तो ठीक है, चलो फेसबुक ट्विटर यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब कोई बैंक का ऑनलाइन बैंक आईडी पासवर्ड ले ले तो फिर तो बहुत बड़ा बवाल होने वाला है ना। और ऐसा ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए आजकल सोशल डिजिटल सोशल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मैसेजेस आते रहते हैं मोबाइल में कि बैंक कभी आपसे ओटीपी नहीं पूछता है। ठीक है, बैंक आपसे कभी आपका पर्सनल डिटेल्स नहीं मांगता है। लेकिन ऐसे कई सारे फ्रॉड कॉल आते हैं जो आपसे आपका बैंक डिटेल्स पूछते हैं, और उससे भी खतरनाक जो कुछ है, बोलते हैं ना कि आपको 25 लाख की लॉटरी लगी है। कितने लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? एक अनजान कॉल आता है, बोलता है आपको 25 लाख या उससे भी ज्यादा, कहीं बोलते आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। अरे मैं कभी टिकट काटा ही नहीं तो मेरे को लॉटरी कहाँ से लगा भाई, है ना। तो ऐसे कई लोग हैं इस झांसे में आए हैं जो इनके बारे में जानकार नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ आप सबको जानकार बनाइए, ठीक है, अपने रिलेटिव्स को, कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, हाँ शीतल को व्हाट्सएप में मिला है, तुरंत ये नंबर पुलिस को दे दो, पुलिस विल टेक केयर। ठीक है, ओके, सो let us continue the paragraph. In other word, you can say that identity theft is any kind of deception, scam, or crime that results in the loss of personal data, including the loss of username, password, banking information, credit and credit card numbers, Aadhaar ID, or unique identity number. ठीक है, which is then used without your permission to commit fraud and other crimes. In today's world, the biggest challenge of every internet user is to safeguard his or her identity, which is constantly under threat from cyber thieves, hackers, and keyloggers. ठीक है, तो of course you must have understood what is identity theft and what precaution we have to take care, that is also important. Next, identity protection while using the internet. Listed below are some of the ways in which you can be a victim of identity theft. ठीक है, मतलब आप भी आइडेंटिटी थेफ्ट का शिकार बन सकते हैं। ये नीचे कुछ पॉइंट्स दिया गया है, उस पॉइंट्स के आधार पर
क्या क्या है, फिशिंग है, डम्पस्टर डाइविंग है, शोल्डर सर्फिंग है, एम्प्लॉयमेंट स्कैम, और आखिरी वाला क्या है, प्री टेक्सटिंग। सो देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। फिशिंग, ये वो वाला फिशिंग नहीं है, मछली पकड़ने वाला। और वैसे भी ये स्टार्ट पी एच से होता है, एफ से नहीं हो रहा है, पी एच, फिशिंग। It is the act of illegally acquiring personal and sensitive information such as online banking details, credit card details, and other login details of an individual by sending malicious emails or by creating web pages that can collect this information as they appear to come from very famous organizations. Yes, मेरे को भी एक मैसेज आया था मारुति सुजुकी कंपनी से, ठीक है। मारुति सुजुकी कंपनी के मैनेजर ने मुझे मेल किया था कि आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द ब्रांच मैनेजर पोस्ट एंड माय सैलरी विल बी समथिंग $15,000 या $20,000, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आई कुड अंडरस्टैंड कि ये जो है एक बोगस मेल है, मैलिशियस मेल भी आप इसमें कह सकते हैं, ठीक है। तो अब उस मेल का रिप्लाई में वो मुझसे क्या मांग रहे थे, मेरा फुल एड्रेस, मेरे बैंक का अकाउंट नंबर, ये सब मेरे से पूछ रहे थे। अगर मैं वो सब दे दिया होता उस टाइम, तो आज मेरे साथ क्या होता, ठीक है। सो ये जो डेटा को चोरी करना, ठीक है, उसे इन डिजिटल वर्ल्ड वी से फिशिंग, डेटा फिशिंग। नेक्स्ट क्या है, डंपस्टर डाइविंग। ये क्या है भाई, नया चीज लग रहा है, देखते हैं क्या है। It is a technique used to retrieve personal information of a user from his discarded documents. Cyber thieves search your trash to get information about your bills, credit cards, and other personal information like codes or password, which they can use to carry out an attack on a computer network. Okay. अच्छा, जब हम पासवर्ड भूल जाते हैं ईमेल आईडी का या फेसबुक का, तो हम लोग पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, है ना। तो रीसेट करते टाइम वो क्या पूछता है कि पहले आपका क्या पासवर्ड था। तो आप उसके आसपास, उस पासवर्ड के आसपास कोई एक अंदाजा लगा के एक पासवर्ड आप डाल देते हैं, तो फिर वो आगे वर्क करता है, ठीक है। अब ट्रैश का मतलब क्या है, यहाँ पर एक वर्ड है ट्रैश, एंड आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ ट्रैश। ट्रैश मतलब जैसे सॉरी, इट इज द डस्टबिन ऑफ इंटरनेट, ठीक है। whenever we delete any mail, whenever we delete any kind of मतलब अकाउंट, तो वो ट्रैश पे चला जाता है। और कुछ ऐसे हैकर्स हैं, वो दिन भर ये ट्रैश में ही खोजते रहते हैं डेटा को, जस्ट लाइक रैग पिकर्स। यू मस्ट हैव सीन रैग पिकर्स, वो पीठ में एक बोरा लेके वो कचरा खोजते रहता है। तो वैसे ही कुछ होशियार लोग हैं, ऐसा मत समझना कि जो हैक करते हैं वो बुद्धू है, वो तो प्रोग्रामर से भी ज्यादा होशियार है हैकर, ठीक है। एक प्रोग्रामर के पास जितना दिमाग होता है, एक हैकर के पास उतना दिमाग होता है, ठीक है। और वायरस बनाने वाले के पास भी, लेकिन वही है, उन लोग अपना दिमाग गलत काम पे यूज कर रहा है, दैट इज नॉट गुड थिंग, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड डंपस्टर डाइविंग एंड टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रैश। नेक्स्ट क्या है, शोल्डर सर्फिंग। ये क्या है भाई, इट इज ऑब्टेनिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज अ पिन at an ATM machine, personal details while filling a form, or the lock code of a smartphone through direct observation by looking over a person's shoulder. This happens in crowded places such as banks. So ये जो चोरी है, डेटा थेफ्ट है, या यू कैन से आइडेंटिटी थेफ्ट है, ये ऑनलाइन नहीं होता है, ये ऑफलाइन होता है। तो इसीलिए जब आप एटीएम में मशीन में होते हैं, तो पहले तो एटीएम मशीन का जो कमरा होता है उसमें एक से ज्यादा लोग एंट्री करने नहीं दिया जाता था, क्योंकि कोई भी आपके एटीएम पिन को झांक के दे सकते हैं, शोल्डर आपके पीछे से झांक के देख सकता है,
ठीक है। अच्छा, कुछ लोग तो भाई बायनोकुलर्स, और यहाँ पर देखो लिखा है बायनोकुलर्स एंड विजन एनहांसिंग डिवाइस यूज करते हैं जूम करके देखने के लिए। ठीक है, जैसे स्नाइपर होता है ना, स्नाइपर, है ना? स्नाइपर गेम खेले हो क्या? कौन कौन खेले भाई स्नाइपर? कोई नहीं खेले? उसमें अलग अलग लेंस होता है जूम करने के लिए। सर मैं हाँ, यस। किसने खेला है? तेजस सर। अच्छा, तेजस्वत खेले हो, अच्छा गुड। हाँ, यस शीतल, एनीथिंग यू वांट टू से? शीतल भी खेली है क्या? गुड। ठीक ठीक। सो ये जो आइडेंटिटी थेफ्ट का पार्ट है, शोल्डर सर्फिंग, ये फिजिकली होता है ना? तो इसीलिए यू नीड टू बी केयरफुल। जहां भी आप बैंक एटीएम का पिन डाल रहे हैं, आपको होशियार रहना होगा, कोई आपका पिन ना चुरा ले। ठीक है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट स्कैम। स्कैम मतलब होता है घोटाला। अब स्कैम से आपको एक नाम याद आया होगा, क्या नाम है उसका? अरशद मेहता। 1912 स्कैम, वेब सीरीज। चलो ठीक है, आजकल बहुत ज्यादा वेब सीरीज हो गया है। एंड people are influenced, basically teenagers, they are much influenced and they are doing some kind of एंटी सोशलिस्टिक एक्टिविटीज। रायपुर में केस हो गया, बहुत ही गंदा, है ना? एक लड़के ने चाकू मारा और उसका वीडियो बनाया, फिर से वायरल किया। वेयर वी आर गोइंग। ओके, कम बैक टू द पॉइंट। सो एम्प्लॉयमेंट स्कैम क्या है? सिंपल है, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था कि मुझे एक मेल आया था मारुति सुजुकी कंपनी से, और मारुति सुजुकी कंपनी के सीईओ ने मुझे मेल किया था, सोचो। अब सीईओ के पास कोई काम नहीं है कि वो मेल करे। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट स्कैम क्या है? इट इज गिविंग टू अ जॉब सीकर अ फॉल्स होप ऑफ एम्प्लॉयमेंट विथ बेटर सैलरी ऑफ पेइंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। $20,000 मुझे सैलरी ऑफर किया गया था, और उस टाइम डॉलर आई होप 60 रुपीज के आसपास था, है ना? तो मतलब लगभग लगभग 1,20,000 रुपये महीना। ठीक है, तो ये इस तरह के स्कैम को हम लोग बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट स्कैम। ठीक है। जॉब सीकर मतलब जो जॉब ढूंढ रहा है। अब क्या है कि नाउ इट इज देर आर डिफरेंट ऑनलाइन वेबसाइट्स विच help you to find job, like naukri.com, monsterjob.com, shine.com. There are jobshine.com. So there are different websites are available for jobs only. तो अगर मैं वहाँ कोई अकाउंट बनाया हूँ, ठीक है, तो उसका ईमेल आईडी कोई चुरा लेता है, लेने के बाद मेरे ईमेल आईडी में वो स्कैम वाला मेल करता है। ठीक है, तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है, मैंने तो भाई नौकरी.com में बनाया, लेकिन नौकरी.com के वेबसाइट को किसी ने हैक कर लिया, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन हाँ, मैं अपना दिमाग लगा सकता हूँ और समझ सकता हूँ कि ये मेल जो मुझे एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है वो कितना सही है। एंड आई मस्ट डिस्कस विथ पीपल, वाइज पीपल। ठीक है। Okay, and I did that actually. I discussed with my elder brother, and my elder brother who was working in Dubai. I asked him कि भाई ये क्या है? So he instantly said it is a fake mail, 100%, and delete the mail and don't respond. तो मैं बच गया। हाँ, यस, खुशी लगम, सही नाम लिए हो वेब सीरीज का, मतलब आप देखते हो। ठीक है। सो वही प्रोसेस है, देखो जैसे कि मैंने कहा, क्या होता है कि द थीव्स कीप ट्रैकिंग द अकाउंट्स ऑफ जॉब सीकर्स हु आर एक्टिवली अपडेटिंग देयर सीवीज। अब सीवी अपलोड करने के भी कई सारे वेबसाइट्स होते हैं, और वो वेबसाइट्स आपको जॉब ढूंढ के देता है। An email is then sent to the ID offering them a good job with an attractive salary. In return, the job seeker has to share a lot of personal details, which also include the bank details and transfer some amount. See, वही हुआ मेरे साथ एम्प्लॉयमेंट स्कैम 2012 होने वाला था।
लेकिन मैं बच गया। ठीक है, तो आपको भी अगर ऐसा कुछ मेल आता है अपने कोई रिलेटिव के पास, तो उसको बोलना गलत मेल है। नेक्स्ट जो लास्ट वन है वो प्री टेक्सटिंग है। अब ये क्या है भला? इट इज द प्रैक्टिस ऑफ ऑब्टेनिंग पर्सन्स पर्सनल इंफॉर्मेशन यूजिंग अ फेक नेम और फेक कंपनी एंड देन सेलिंग द इंफॉर्मेशन टू पीपल हु यूज इट टू स्टील द पर्सन्स ऑनलाइन आइडेंटिटी। ये तो वही है, बड़ा सिंपल सा क्या बोलना चाहिए, एक वेरी सिंपल वे टू स्टील द डेटा। ठीक है, अब वही कोई है, कोई एक ऑनलाइन जब आप कुछ सर्च करते हो तो कई सारे एड्स आते रहते हैं आपके स्क्रीन में। ठीक है, उस एड में कुछ अट्रैक्टिव सा कुछ बोला रहता है कि ज्वाइन विथ अस एंड अर्न 50,000 पर डे। अरे 50,000 पर डे, कौन सा जॉब है भाई? हम लोग क्यूरियस हो जाते हैं, फिर उसमें क्लिक करते हैं तो उसके बाद बोलता है कि हाँ, आपको आपका जो है वो पैसे पहले कुछ बता देगा, ऐसा 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 हमारा काम है, आप अपना डिटेल हमें दीजिए, हम आपका अकाउंट क्रिएट कर देंगे और उसके बाद आप मंथली 50,000, सॉरी डेली 50,000 कमा सकते हैं। भाई ऐसा कौन सा जॉब है जो डेली 50,000 दे, वो भी ऑनलाइन? सो फेक होता है, कंपनी भी फेक होता है। तो उन लोग क्या है, आपका ईमेल आईडी ले लेता है, आपका इंफॉर्मेशन ले लिया, उसके बाद फिर वो उसे किसी हैकर को बेच देता है, और वो हैकर उस ईमेल आईडी के जरिए से आपके पूरे डिजिटल वर्ल्ड में सेंध मारता है, एंटर करता है, अनवांटेड इलीगल एंट्री। उसके बाद तो फिर समझ लो क्या होता है। नेक्स्ट हाँ, हरित धनी ऐप से गेम खेल कर पैसा कमा सकते हैं। देखो, एक सिंपल सी बात है कि ऑनलाइन में जब तक आप अपना पर्सनल डेटा शेयर नहीं कर रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन जो ऐप या जो वेबसाइट आपसे ईमेल आईडी मांगे, आपका फोन नंबर मांगे, और वो वेबसाइट रेप्यूटेबल नहीं है, उसका कोई रेपुटेशन नहीं है, आप पहले कभी सुने भी नहीं हो, तो वहां शेयर करना बेवकूफी होगा। इट विल बी अ सिली, वेरी सिली थिंग। ठीक है, लेकिन अगर कोई रेपुटेबल ऐप है, अगर वो गवर्नमेंट से वेरीफाइड है, देन देर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ, एक्चुअली क्या होता है बेटा, आजकल ईमेल आईडी जो है वो कई सारे बैंक के साथ लिंक्ड होता है, या वो आधार कार्ड से लिंक्ड होता है, या कुछ लोग क्या है देखो, बैंक जैसे कोई ओटीपी भेजता है कई बार, या कोई आपके पासवर्ड चेंज हुआ उसका इंफॉर्मेशन जो है वो ईमेल आईडी के जरिए से भेजता है कई बार बैंक, तो वो तो दिख जाएगा ना फिर, अगर कोई आपके ईमेल आईडी हैक कर लिया। ठीक है हरित, हाँ, अनलिंक्ड ईमेल कोई एकदम ऐसी आपने जबरदस्ती कोई ईमेल आईडी बनाया है तो उसे आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस ईमेल आईडी बनाते टाइम आपने रिकवरी ईमेल में अपना पर्सनल ईमेल दे दिए, फिर दिक्कत है। कहीं ना कहीं से अगर लिंक मिल गया अगर हैकर को, तो आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके। यस गौरव, गौरव इज आस्किंग द पार्ट ऑफ पीरियडिक टेस्ट 2। Lesson 4 and 5, operating system and working with an operating system। ठीक है, अब वैसे भी यू विल गेट इट वेरी सून, बहुत जल्दी ऑफिशियली आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, ये भी एक हो सकता है हरित, फोन नंबर अगर आपके ईमेल आईडी से कनेक्टेड है तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत हाई लेवल का
हैकिंग करना होगा, ठीक है, वही है, वो आपके फोन नंबर पे कुछ भेजेंगे मैसेज, आपको 10 लाख की लॉटरी लग गई है, इस लिंक पे क्लिक करें और उस लॉटरी का पैसा ले ले। तो फिर आप लिंक पे क्लिक करोगे, फिर वो डिटेल मांगेगा, तो हो सकता है, पॉसिबल है। ओके, नाउ मेनी वेज वेबसाइट्स ट्रैक यू। यस, हम भी ट्रैकिंग के शिकार हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ डू वी गेट ट्रैक्ड। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं पैराग्राफ को, बिल्कुल पानी जैसा समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। It is important to understand this. Suppose you are looking for coaching classes online. After a day or so, you start receiving emails from various websites that offer you online tutorials, coaching materials, and even home tuitions. Although you did not surf or register or any of these sites, then how come these websites got the details of the data you are looking for online? This is because when you surf the net, the websites keep a track of your activities and use the data you share to track you. These websites also collect information about the type of websites and pages you are visiting, your location, what you usually read or search for on the internet, etc. This basically can be termed as online tracking. So very simple and very easy to understand. सिंपल है, जब आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो, जब आपको वेबसाइट का पता होता है तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट करते हो। जब आप कोई वेबसाइट का पता नहीं होता तो आप गूगल में सिंपली टाइप करते हो, सर्च करते हो, फिर आप आपके सामने एन नंबर्स ऑफ वेबसाइट्स आ जाते हैं और आप किसी भी वेबसाइट पे क्लिक करते हो। अगर वो वेबसाइट कोई ऑथेंटिकेट वेबसाइट नहीं है, तो उस वेबसाइट पे कोई नजर रखा है, वी कांट फाइंड देम हु आर बिहाइंड दिस। लेकिन कुछ लोग, उनका वही काम रहता है कि वो वेबसाइट को ट्रैक करते हैं और उस वेबसाइट में कौन विजिट किया है वो भी पता चल जाता है। अच्छा, और एक बात, जब आप स्मार्टफोन से कुछ सर्च करते हो, है ना, स्मार्टफोन को ऑपरेट करने के लिए यू हैव टू बी रजिस्टर्ड विथ एन ईमेल आईडी। मोबाइल में, स्मार्टफोन में एक ईमेल आईडी आपको देना होता है। तो जब आप कुछ सर्च करते हो गूगल क्रोम से, तो वो उसका लॉग बनते जाता है, उसका हिस्ट्री बनते जाता है। आपके मोबाइल में तो हिस्ट्री बनता ही है, और ऑनलाइन क्लाउड में भी एक हिस्ट्री बनते जाता है। आप अपने मोबाइल से भले हिस्ट्री को डिलीट कर दो, लेकिन ऑनलाइन क्लाउड में वो कई दिन तक रह जाता है। ठीक है, तो यस, बहुत सिंपल सी बात है, आपने गूगल में टाइप किया ऑनलाइन क्लासेस इन रायपुर, तो कई सारे वेबसाइट्स आ जाएंगे, फिर आप किसी वेबसाइट्स पे क्लिक करोगे, फिर हो सकता है वो वेबसाइट्स आपसे इंफॉर्मेशन मांगे। ठीक है, अब यहाँ आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हो और उस वेबसाइट से कोई और ट्रैक कर रहा है, उसे वो इंफॉर्मेशन दिख जाए। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन ट्रैकिंग। अब नेक्स्ट कम्स ट्रैकिंग स्क्रिप्ट, लेकिन टाइम आई थिंक खत्म होने वाला है, तो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पीरियड, आई मीन नेक्स्ट वीक, आई होप। ठीक है स्टूडेंट्स, आई विल सजेस्ट यू इस चैप्टर को आप भी एक बार अपने से गो थ्रू करो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नॉट बिकॉज ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एक हमारे काम के लिए है, हमारे रियल लाइफ में बहुत काम आएगा ये। ठीक है, ओके, सो जस्ट गो थ्रू द चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका ट्रैकिंग स्क्रिप्ट, इसको एक बार पढ़ लो, एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू the explanation of tracking script, IP address, cookies। ठीक है, कुकीज ये खाने वाला कुकीज नहीं है ना। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आई थिंक यू हैव द पॉइंट्स। अभी तक जितना हम समझे हैं सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है?
No, sir. नो डाउट। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन डाउट रहना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। जिसके पास बुक है वो लोग पढ़ेंगे, जिसके पास बुक नहीं है वो लोग भी पढ़ेंगे। नेट पे ये है, आई मीन सॉरी, पोर्टल में अपलोडेड है। डाउनलोड करो और रीड करो, ठीक है। ओके देन, बाय, सी यू सून, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड ऑफ कोर्स सर्फ सेफ ऑल्सो। नेट सर्फिंग जब करोगे सिक्योरली करना। और हाँ हाँ, और एक बात भूल ही गया था, नोट्स नोट्स सेंड करो ईमेल आईडी में, है ना। लास्ट डेट आने वाला है, आई थिंक कितना तारीख, 10 तारीख ही दिया था क्या मैं लास्ट डेट? सर 12 दिए थे। ठीक है, तो 12 तारीख तक सबका आ जाना चाहिए। अच्छा सर 12 15 तारीख? तारीख तक, सर 15 तक आ जाएगा। नहीं बेटा, आई कांट गिव टू मच सर टाइम। नहीं लिखे हैं, सर नहीं लिखे हैं। यू मस्ट राइट देन, आई कांट गिव यू दैट मच। अभी लिख ही तो रहा हूँ। I know you are writing, so just do it fast and submit it on or before 12. Okay? यस सर। हाँ, और वो ऐसे राइटिंग कंपटीशन के लिए कौन कौन इंटरेस्टेड है इसका भी तो व्हाट्सएप में बता देंगे। हाँ, आप में से जल्दी से बता दीजिए तो मैं यस सर। मैनेजमेंट को सर इन्फॉर्म कर देता हूँ। सर PT2 के लिए उसमें इंग्लिश का क्या है पोर्शन? बेटा उसे बहुत जल्दी बता दिया जाएगा, चलो मैं इंग्लिश पीरियड में बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट डे। यस सर। ओके, थैंक यू सर। हाँ।